Hey, hello everyone, this is Girish Tiwari and today now I'm addressing about the Niels Bohr model for hydrogen atom. The existence of this orbiting electron was not well confirmed by the Rutherford's alpha scattering. So after all, a scientist Niels Bohr thus discriminated that this orbiting electron rotates or revolving around the heavy nucleus in circular orbit, and there the existence of this orbiting electrons and the nucleus given by their respective postulates, and these postulates is known as the following. First postulates states that the electron moves around the nucleus in circular orbit, in which the centripetal force between the electron and the nucleus is well provided by the electrostatic force between these two charges. Fe is equal to Fc, where Fc is mv square by r and Fe is equal to E square by 4 pi epsilon naught into 1 by r square. This is the electrostatic force between them. From this relation, we can get that R is equal to E square by 4 pi epsilon naught into mv square. This is the radius. We also know the kinetic energy is 1 by 2 mv square. So from this relation we can also get the formula for the kinetic energy of this electron and as well as potential energy. What says about the second postulates of the Bohr's model? दूसरा मॉडल कहता है कि इन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम होता है उस न्यूक्लियस के अबाउट वो कांस्टेंट होता है. Actually, this is a central force, and in central force, the angular momentum is conserved. As you have been learned in the gravitation chapter, that angular momentum of the planet about a stationary nucleus was constant, L by 2m. तो कुछ इस तरीके का इसमें भी है, और सही में यह है कि ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही न्यूक्लियस के अबाउट मूव करते हैं, जो समरफील्ड के मॉडल में बताया गया है. पर यहाँ पर हम केवल एक हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल केस है. और हम देखते हैं द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज सम परफेक्ट मल्टीपल ऑफ h by 2 pi. This the angular momentum L is equal to mvr is equal to nh by 2 pi, where h is the Planck constant and m is the principal quantum number. It can be 1 2 3 4 5 6 and etc. यहाँ पर ये हो सकता है. सो इस इक्वेशन से हम यहाँ पर अगर हमें रेडियस निकालना हो तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में हम रख सकते हैं. लेट सपोज दिस इक्वेशन बी सेकेंड एंड थर्ड postulates of the Bohr's model is such that when an electron jumps from a higher state energy to the lower state energy, then it creates a photon which is equivalent to the difference between these two energies. अब जैसे मानते हैं कि हमारे पास इनिशियल जो है किसी एटम की जो एनर्जी है उसे अगर EI से डिनोट करते हैं, तीसरा हमारे पास है EI, इनका डिफरेंस जो होगा EF, वो हमारा होगा एक फोटॉन निकलता है. फोटॉन से एनर्जी जो होती है पर एनर्जी वो h न्यू होती है, जहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट है. इस EI माइनस EF को हम लिख सकते हैं डेल्टा E, और डेल्टा E is equal to h nu. As we know that nu is equal to c by lambda, so this is just similar as delta E is equal to hc
बाई लैम्डा। क्लियर, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों के डिफरेंस, एनर्जीज लेवल के डिफरेंस जब होते हैं तो एक फोटान क्रिएट होता है, तभी ये फोटान क्रिएट करेंगे, अन्यथा नहीं, जो बिल्कुल रदरफोर्ड के मॉडल से अलग है। ये तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेंगे, तभी कोई फोटान जनरेट करेंगे जब ये ट्रांजिशन करते हैं, अन्यथा नहीं। और इन सभी इलेक्ट्रॉनों का किसी एक डिफिनिट क्वांटम नंबर में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। अब नया टर्म आता है बोहर्स रेडियस। व्हाट इज बोहर्स रेडियस? एक्चुअली बोहर्स radius is only applicable for hydrogen atom only. हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और उसके न्यूक्लियस से आपस में जो इंटरेक्शंस हैं ये बहुत सिंपल है और की एटम्स की तुलना में, एलिमेंट्स की तुलना में, इसलिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करेंगे। एक न्यूक्लियस उसके पास और एक इलेक्ट्रॉन के बीच का जो इंटरेक्शन है वो इसमें हम देखेंगे। तो बोहर्स रेडियस, बोहर्स रेडियस। अब जैसे कि हमारे पास बोहर्स रेडियस निकालना है तो इसका मतलब हमारे पास इस इक्वेशन से यहाँ पर जो mvr इक्वल nh/2 पाई आया हुआ है, यहाँ पर हम जो है वेलोसिटी की वैल्यू इस इक्वेशन से रखेंगे। इस इक्वेशन से वेलोसिटी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से हम यहाँ पर रखेंगे। इसको हम दो तरफ स्क्वायर करा दे रहे हैं, mv² r² इज इक्वल टू n²h²/4π²। यहाँ से हम इस इक्वेशन से हम v² की वैल्यू रखवा देंगे तो हमारे पास m² होगा और यहाँ पर जो है v² की वैल्यू जो होगा हमारे पास वो e²/4πε0 r इंटू m हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे r² है और ये इक्वल होगा n²h²/4π²। यहाँ से 4 to 4 कैंसिल, पाई टू 1 पाई कैंसिल, m to 1 m कैंसिल and b get r to r cancel. B can get that e² into r by epsilon0 is equal to n²h²/pi। तो हम यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते हैं। r इक्वल हमारे पास होगा n²h²/epsilon0 एंड यहाँ पर हमारे पास m भी बचा हुआ है, तो r इक्वल होगा n²h²/epsilon0/πm_e²। Now putting the value of n is equal to 1 for hydrogen atom only. So for if we choose n is equal to 1, we can get r known as Bohr's radius, and this will equal to h²/epsilon0/πme²।